کہ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ملاقات ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو سوشل میڈیا پر بیان میں کہتے ہیں کہ ایران سے ممکنہ ڈیل کو ترجیح دی جائے گی۔ مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بتایا ہے کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے۔ پچھلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ایران کو مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امید ہے کہ ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ اور معقول ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ امریکہ کی مشرق وسطی میں دوسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعیناتی کی تیاری شروع۔ پینٹاگون کے مطابق اقدام ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کیری اسٹرائک گروپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری تعیناتی کے لیے تیار رہے۔ تعیناتی کا باضابطہ حکم چند گھنٹوں میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ ایران پر حملے کو جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کے مشیر علی شمخانی کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایرانی میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ فوجی طاقت کی نمائش کی بجائے سنجیدگی دکھائے۔ مذاکرات کے ساتھ دھمکیاں امریکی فطرت ہے۔ محدود فوجی حملہ بھی جنگ کا آغاز ہوگا۔ جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گی۔ کون بنے گا بنگلہ دیش کا وزیر اعظم؟ پارلیمانی انتخابات کا میدان آج سجے گا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اتحادیوں کا جماعت اسلامی اور حامیوں سے جوڑ پڑے گا۔ طارق رحمان میدان ماریں گے یا شفیق الرحمان؟ عوام فیصلہ آج دیں گے۔ 50 سیاسی جماعتیں اور 2000 سے زائد آزاد امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل 300 نشستوں پر براہ راست الیکشن ہوں گے۔ پارلیمنٹ میں 50 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ 90% پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔ لو لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہے۔ جین زی بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار۔ 3 کروڑ سے زائد ووٹوں کے ساتھ نوجوان نسل کے نمائندے آئندہ کے سیاسی منظرنامہ تشکیل دینے میں نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ بنگلہ دیش کی عام انتخابات دنیا کے پہلے جین زی سے متاثر الیکشن ہے جس میں نئے حکمرانوں کے چناؤ کے لیے نوجوان ووٹرز کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ بنگلہ دیش الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق عام انتخابات میں جین زی یعنی 18 سے 29 سال کے ووٹرز کی تعداد 1/4 ہے جو 3 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بنتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے جین زی کو کنگ میکر بلاک قرار دیا جا رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی 15 سالہ آمرانہ دور حکومت کا خاتمہ بھی جین زی کی بدولت ممکن ہوا۔ جین زی کی تعلیم یافتہ نوجوانوں ہی کی بدولت یونیورسٹیز میں شروع ہونے والی انقلابی تحریک پورے ملک میں پھیل گئی۔ حسینہ واجد کو مستعفی ہو کر بھارت فرار ہونا پڑا۔ نوجوان آمرانہ طرز سیاست سے ہٹ کر عملی اور نظریاتی بنیادوں پر سیاسی وابستگی کے قائل نظر آتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، آزادی اظہار کے مسائل کا حل اور ملک میں بھارتی اثر و رسوخ کا خاتمہ نوجوانوں کا اولین مطالبہ ہے۔ جنریشن زی کا اس وقت 2 بڑی جماعتوں BNP اور جماعت اسلامی کی طرف رجحان ہے۔ انقلاب برپا کرنے والے نوجوانوں کی تنظیم انقلاب منچا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد قائم کر چکی ہے جس سے BNP کو ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ جین زی ووٹرز کے ٹرن آؤٹ پر منحصر ہے۔ عام خبر آپ کو دیں کہ نئی سولر پالیسی پر ملک میں بھونچال۔ دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے بعد وزیر اعظم کا نیپرا کے نئے ریگولیشنز کے اجرا کا نوٹس۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نئے ریگولیشنز کے اجرا پر اعلیٰ سطح کا خصوصی اجلاس۔ پاور ڈویژن کو سولر صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ سے متعلق فوری نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سولر صارفین کے کانٹریکٹس کا تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سولر صارفین کا بوجھ 3 کروڑ 76 لاکھ نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہ پڑے۔ سولر سے مستفید ہونے والے صارفین کی تعداد 4,66,000 ہے۔ پاور ڈویژن اس حوالے سے جامع عمل تشکیل دے۔ نیپرا نے 2 روز قبل نیٹ میٹرنگ پر نیا نظام متعارف کروایا تھا۔ یونٹ کے بدلے یونٹ ایڈجسٹ کرنے کی سہولت ختم۔ سولر صارفین کو بجلی کی پوری قیمت دینی ہوگی۔ اب گرڈ سولر صارفین سے بجلی 8 سے 10 روپے فی یونٹ خریدے گا۔ جب آپ گرڈ سے بجلی لیں گے تو آپ کو مکمل ریٹیل ٹیرف دینا ہوگا۔ یہ ٹیرف تقریباً 50 روپے فی یونٹ تک ہو سکتا ہے۔ ڈسکوز کے الیکٹرک کو 55 سے 60 روپے میں بجلی فروخت کریں گے۔ خریداری تقریباً 11 روپے میں ہوگی۔ ناظرین، نیپرا نے فکس چارجز کے حوالے سے پاور ڈویژن کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ 300 یونٹ تک کے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر بھی فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے دیگر
कैटेगरीज के लिए फिक्स चार्जेस में इजाफा कर दिया गया है। 300 यूनिट तक घरेलू प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर भी माहाना फिक्स चार्जेस आए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अब तमाम घरेलू सारिफीन को इजाफी फिक्स चार्जेस अदा करना होंगे। फैसले में कहा गया है कि फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर लगाए गए हैं। इससे पहले सिर्फ 300 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर फिक्स चार्जेस आए थे। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। माहाना 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन को 300 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस देना होंगे। इसी तरह 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को 300 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। माहाना 300 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस लागू कर दिए गए। माहाना 301 से 400 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन को 200 रुपए इजाफी से 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देना होंगे। 401 से 500 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन 100 रुपए इजाफे के साथ 500 रुपए फिक्स्ड चार्जेस देंगे। 600 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के फिक्स्ड चार्जेस 75 रुपए इजाफे से 675 रुपए मुकर्रर किए गए। 700 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 125 रुपए कमी करके फिक्स्ड चार्जेस 675 रुपए मुकर्रर किए गए। 700 यूनिट से जायद बिजली के इस्तेमाल पर फिक्स्ड चार्जेस 325 रुपए कमी से 675 रुपए कर दिए। उधर हुकूमत ने सनती सारिफीन पर 101 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी। सनती शोबे के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती कर दी गई। इंडस्ट्री का बुनियादी टैरिफ 33 रुपए से कम होकर 29 रुपए पर आ गया। नाजरीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौड़ समेत पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। वफ़द ने सदर जरदारी से पार्टी मामलात पर रहनुमाई ली और आइंदा इक़दामात पर मुशावरत की। सदर जरदारी ने भारतीय गैर कानूनी तसल्लुत में मुक़ीम कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हक़ खुदारादियत के लिए कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर दिया। वफ़द में साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास भी मौजूद थे। मुलाकात में मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। आज़ाद कश्मीर में नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के डिप्टी स्पीकर की तब्दीली का फैसला भी कर लिया। नया डिप्टी स्पीकर भी पीपल्स पार्टी से लाए जाने का इम्कान है। इलेक्शन के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है, उन्होंने अपने जो उनके लीडर हैं हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, उनके साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि चूँकि जो नंबर चाहिए होते हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उससे ज़्यादा हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है और जमहूरी तकाजा भी है और आइनी तकाजा भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट मुंतखब होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर को हम तब्दील करने जा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे या होंगी। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये है कि चूँकि नाम वफाक को आ चुके हैं, चूँकि उसमें अपोजिशन लीडर का और वज़ीर आज़म का चूँकि प्रोगेटिव होता है, तो नाम जो है वो वफाक को भेजे जा चुके हैं। तो वो किसी भी वक्त जब वफाक करना चाहेगा तो हम यकीन रखते हैं कि वो जल्दी हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाक फ़ौज के बारे में अपोजिशन का बयानिया गैर ज़िम्मेदाराना है। कायद हिस्ब इख्तलाफ के बयान से तकलीफ हुई। ये सिर्फ 4 ज़िलों की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन शुहदा हमारी रेड लाइन है। सर, ये एक वफाकी फ़ौज है, किसी सूबे की या किसी 4 ज़िलों की फ़ौज नहीं है, जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है। 3141 जो है टोटल शहादतें 5 साल में दहशतगर्दी की जंग में हमारी हुई हैं। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। साथी और अपने ज़ाती मफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की हिफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं, तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है, और रात को जो है चैन से सो सकें।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ये कहना है कि मैं नहीं कहता कि इलेक्शन मैनेज नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको दहशत गर्दी के साथ ना जोड़ा जाए। फॉर्म 47 की रिट लगाई हुई है। आए इलेक्शन रिफॉर्म्स और फंड्स की तकसीम पर बात कर लेते हैं। हमने सियासी डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कब हमने पॉलिटिकल डायलॉग से इनकार किया है? आ जाए ना, पॉलिटिकल डायलॉग पे बात कर लेते हैं। आए बात कर लेते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स पे। जनाब स्पीकर, ये जो फॉर्म 47 की रट लगाई हुई है, सो जनाब स्पीकर, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, लेट्स डिबेट ऑन दिस। आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर लेते हैं, आइए मेरिटोक्रेसी पे बात कर लेते हैं, आइए फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान के इस दहशतगर्दी के इशू को लेकर एक कंफ्यूजन है पूरे पाकिस्तान में। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है और एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद पर है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों का कत्ल गारत शुरू कर दे। तो अनपैरेलल डेवलपमेंट पे जो डेवलपमेंट कराची में है, क्या वो कश्मीर में है? लाहौर की मिसाल है, मैडम मरियम नवाज की मिसाल अभी मेरा कोई दोस्त दे रहा था, जो लाहौर में डेवलपमेंट है, क्या वो गुजरावाला में है? क्या जो पेशावर में डेवलपमेंट है वो डेरा इस्माइल खान में है? सो क्या वहां के लोग उठ के बंदूक उठा के लोगों को जाके मार धाड़ शुरू कर दे? जनाब स्पीकर, क्या बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख नहीं किया गया? बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून के? बलोचिस्तान में अमन अमान पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा कि कुछ रहनुमा दहशतगर्दों को भाई कहते हैं। इस सोच के होते हुए जवान शहीद होते रहेंगे। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, उनकी जितनी भी कुर्बानी है, शुहदा की जो कुर्बानी है, आज जिस जज्बे के साथ, जिस बहादुरी के साथ वो लड़ रहे हैं और अपने वतन अजीज़ को सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम आराम से सोएं। मैं आर्म्ड फोर्सेस की, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को पंजाब के आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से मैं सलूट करती हूँ। मैं अभी IGFC साहब को कह रही थी कि कोई दुश्मन, कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, कोई मुखालिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक सब एक यूनिट की तरह, एक मुल्क की तरह, एक कौम की तरह जब तक हम इकट्ठे रहेंगे, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और आज जब मैं ये देख रही थी तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आया, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आया और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। आप आवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं।